Hello everyone, my name is Nasir Sheikh. I am the mathematics faculty in Quantum Group Tuition. Today we'll discuss about the practice questions for geometry SSC 2019. So basically in this video we are going to talk about how you can revise geometry. Okay, so first of all I'll divide the students into two parts, who are weak in geometry and who are strong in geometry. Okay, so those who are weak in geometry, for the first 8 marks question, which will come from 9th standard book, you may refer Navneet 21 for that. From there you can practice all 1 mark and 2 marks question. I think this will be sufficient, or you may go for any other standard books, but just make sure whatever you practice for that 1 mark and 2 marks question, you know that the concept behind that. देखो वो concept काफ़ी easy होगा, बस आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, बिकॉज नॉट द सेम सम विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट similar to that, on that similar concept you will be asked questions. So just make sure you have revised the properties of 9th standard, which goes for 1 mark or 2 marks. Okay, for the rest 32 marks you may focus on specific chapters first, like construction should be the best chapter for you, then the second best should be your coordinate geometry. For the next chapter you may go for this similarity chapter if you want to, because similarity first chapter होता है, सारे बच्चे वहाँ मेहनत करते हैं, तो generally you know this chapter. Okay, for mensuration you may, I'll talk about how weak student can do things for mensuration. Okay, mensuration आपको कैसे practice करना है, I'll tell you further in the video. Okay, now those students who are strong in maths, अच्छा, one more point, those who are weak in math, do not practice the problem set questions at all. Okay, just practice the exercise question, because बहुत सारी चीज़ें करने जाओगे तो ऐसा होगा कि शायद कुछ भी नहीं करवा. So just make sure, for weak student I am telling again, just make sure आपने जो भी किया you know it perfectly, आपको बड़ा thoroughly वो सारी चीज़ें आती है. Okay, just make sure कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस है. नाउ आई विल कम टू द स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, दोज आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ. फॉर देम 8 मार्क्स इज द केक वॉक, इजीली आप लोग अचीव कर जाएंगे उसको. फॉर द नेक्स्ट 32 मार्क्स यू मे गो फॉर ऑल दी एक्सरसाइज. आपको पता है वो तो स्लाइड्स में आप देखेंगे ही आप कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सेट, आप प्रॉब्लम सेट से क्या करेंगे? ओके, फॉर प्रॉब्लम सेट डू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज और प्रॉब्लम के क्वेश्चन दे आर ऑलमोस्ट सेम. एंड डू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, फॉर सर्कल यू मे स्किप द प्रॉब्लम सेट पार्ट, बिकॉज इट्स वेरी रेयर कि सर्कल में से आया जाता है एज पर द पैटर्न. नया पैटर्न है, स्टिल आई कैन बेट कि बहुत कम इसमें से सर्कल में से प्रॉब्लम सेट में तो क्वेश्चन होगा, मे बी जस्ट अ 1 क्वेश्चन. ओके, और एक से ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं. इफ़ यू आर वेरी अनलकी देन okay, sorry. So, and after that circle part and construction, for mensuration you have to practice almost all the sums for the problem set part. अगर आपने पहले से किया हुआ है problem set उसका, so just go for those sums which are in which you have doubts, because mensuration is a very lengthy chapter. एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इन प्रॉब्लम सेट पार्ट अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच इन्वॉल्व अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन. सो इनडायरेक्टली इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टाइम फ्रॉम यू. ओके, तो जब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा, लाइक 24 to 30 आवर्स, तो चूज दिस थिंग्स वेरी वाइसली. एंड सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस, जस्ट मेक श्योर यू डू द लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट वेरी वाइसली, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पुराने सिलेबस से हैं. सो इन टर्म्स ऑफ दैट ओल्ड सिलेबस ना, यू मे गो फॉर दैट. ओके, एंड फॉर द ट्रिगोनोमेट्री पार्ट, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तो अगेन विल डू ऑल द सम्स. फॉर वीक स्टूडेंट, प्रूफ वाले सम्स अगर आपको नहीं आए, इनके प्रूफ वाले नहीं आ रहे, तो जस्ट गो फॉर प्रूफ वाले सम्स को छोड़ दो, एंड उसके अलावा जो सम्स हैं फॉर वीक स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो. लाइक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट आर रियली इजी, लाइक वेरी इजी. उसमें अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली करेक्टली आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और कैलकुलेशन वाइज इज वेरी सिंपल, 2 स्टेप में 3 आंसर स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. ओके, okay, this was the entire scenario. How can you go for geometry for weak and strong students? If still you have any questions, तो आप comment sections में आप बता सकते हैं question. Let's go to the slide part now. Okay, so for the first slide, similarity is your first slide here. So you may see the questions here. Okay, I'll repeat it
again and again, these are not the important questions. Okay, important question फर्स्ट सिलेबस में आपको कोई नहीं दे सकता, फर्स्ट टाइम के सिलेबस में. व्हाट आई हैव मार्क्ड हियर इज दैट टाइप्स ऑफ सम जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज कवर होगी. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है या थ्योरम है जिस पर बेस्ड सम है और उस सम में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है या थ्योरम का यूज़ हो रहा है, तो ऐसे सम्स मैंने आपके सामने मार्क किए जिसको करके आप सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को कवर कर लेंगे वेरी वाइजली. ओके, ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सॉरी, okay, so next slide is for Pythagoras theorem. For Pythagoras theorem, practice set 2.2 के last three question number 3, 4 and 5. Do it very wisely. There is a higher number of chances कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाए. इसका प्रॉब्लम सेट के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको. So very high chances for question number 3, 4 and 5. Let's go to the next part, circle part. Okay. Now I'll tell you about circle. There's a very hype about this chapter. What is the hype? That this chapter is very difficult. आप इसको नहीं कर सकते. As per my experience, I have been teaching 10th standard since past 6 years. Okay, so as per my experience, this is only a hype about this chapter. This is a chapter from easy to moderate level, not a difficult one. हमने डायरेक्टली इसको moderate से difficult में भी नहीं रखा है, हमने डायरेक्टली इसको difficult में रखा है. Okay, बट थिंग इज़ दैट ये मिथ को हटाना पड़ेगा. अब बहुत ही कम समय बचा है, तो देर इज़ नो इंटेलिजेंट डिसीजन कि आप इस चैप्टर को अभी करें. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी दिस चैप्टर एंटायरली, तो ये सारे सम्स आप रिवाइज कर सकते हैं. बट इन केस अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे सारे चैप्टर्स हो गए और सर्कल में से मैं कुछ कर सकता हूँ, प्लीज़ गो फॉर दैट प्रैक्टिस सेट 3.5 के पाँचों सम्स पर. एंड देयर इज़ अ रीज़न ये 3.5 ही क्यों करना अगर आपने सारा चीज़ छोड़ दिया तो. बिकॉज एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन डालूं जिसमें मैं अपने स्टूडेंट को चेक करूं कि उसने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है या नहीं, एंड ही और शी नोज दैट कि हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज. ओके, तो दिस 5 क्वेश्चन में इन एवरी क्वेश्चन देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, और एज पर द ट्रेंड इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा. सो अगर आपने पूरा सर्कल को स्किप किया है तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर लास्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है. प्लीज मेक श्योर यू नो दी प्रॉपर्टीज और उसके बेस पर आप क्वेश्चन को करें. दैट वाज ऑल फॉर सर्कल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कॉल्ड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. आई डोंट थिंक सो यू नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, बट आई विल टेल यू वन थिंग हियर. द थिंग इज दैट योर राउंडर और कंपास शुड बी वेरी परफेक्ट, बिकॉज अगर आपका राउंडर या कंपास परफेक्ट नहीं है तो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है. सेकेंडली, ऑलवेज ड्रॉ रफ डायग्राम में. विदाउट रफ डायग्राम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्या कहते हैं टू गेट द एनालिसिस ऑफ द सम. And secondly, for rough diagram you have marks, so if you don't draw the rough diagram they may cancel your marks there. ठीक है. And next thing is please do not overwrite. बार बार लाइन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन भी नहीं होनी चाहिए. पेंसिल शुड बी वेरी शार्प, ज़रा आपकी थिक लाइन भी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, वेरी थिन लाइन भी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज डायग्राम पेज के सेंटर में होगा. एंड एवरी टाइम इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़, कि आपको जो आपका डायग्राम है वो आपको बनाना कहाँ पर है, पेज के सेंटर में बनाना है. ठीक है, पेज के सेंटर में डायग्राम बनाइए. रफ डायग्राम टॉप राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट पर बना कर रख दीजिए उसको. रफ डायग्राम बनाइए, उसका बराबर से सेंटीमीटर्स लिखिए कि कितने सेंटीमीटर्स है या मीटर्स है. ट्राइंगल का नाम बराबर से लिखिए कि क्या है नाम उसका ट्राइंगल का. ओके, जस्ट मेक श्योर कि वो देखने वालों को अच्छा लगे. ठीक है, दे शुडंट फील बैड कि इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स. दीज आर योर लाइक जैकपॉट टिकट चैप्टर्स. ठीक है, ईजी चैप्टर है. Okay, then go to the next slide. Now this is one of the easiest chapter or the easiest chapter, coordinate geometry. Repetitive sums, same formulas. Just you have to make sure in this chapter 2 things. You know the formula. Second, your calculations are very good. ठीक है, मतलब नॉर्मल प्लस माइनस ही है इसमें, बट सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. ओके, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट में भी ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है. सो वन टिप फॉर वीक स्टूडेंट इज दैट यू मे गो फॉर प्रॉब्लम सेट. क्या पता कोऑर्डिनेट में शायद प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन आ जाए और आपका छूट नहीं जाए वो. तो इसलिए इफ इट इज़ एन ईजी चैप्टर फॉर वीक स्टूडेंट आई विल टेल यू फॉर कोऑर्डिनेट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन फॉर वीक स्टूडेंट एज वेल प्लीज़ गो फॉर दी प्रॉब्लम सेट. ये दोनों चैप्टर के प्लीज़ प्रॉब्लम सेट को कीजिएगा ज़रूर. एंड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन मोर थिंग, एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिख लो एंड यू शुड नो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ डू दिस प्रूफ क्वेश्चन वेरी वाइजली. सपोज करो एग्जाम में प्रूफ वाला क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट आ गया तो क्या करोगे.
अगर आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो वीक स्टूडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट दोनों के लिए बोला, हम सबको पता है कि स्टेप्स पर मार्क्स होता है। सो फॉर आउट ऑफ स्टेप, अगर आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ गया आपको, फॉर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, अगेन वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मैथ्स में, वो कंक्लूजन कहीं ना कहीं उसका प्रूफ लेकर आते हैं, बट आप उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, आई टेल यू। इफ इन एनी टर्म इट इज़ गिवन लाइक सेक दिया है, कॉट दिया है, टेन ये कोसेक दिया है, इन सबको साइन में कन्वर्ट करिए, साइन या कॉस में कन्वर्ट करिए और फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 10 स्टैंडर्ड के लेवल पे इंशाल्लाह ज़रूर आपका आंसर यहाँ पर होगा। एंड फॉर 6.2 फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, all questions are compulsory because it's an easy one, okay, for at least for the SSC part, not for the CBSE part, but for the SSC part these questions are really best one, okay। सिर्फ डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करो, उसका डिस्क्रिप्शन बराबर लिखो, वहाँ पर आप ज़रा अल्टरनेट एंगल प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए और फिर आंसर निकालिए। दीज आर द रियल सिंपल क्वेश्चंस, डोंट skip these questions, please practice well, okay। We'll go to the next slide now। Okay, the mensuration, we can see in the slide there is no important question here because the reason is that every question is important and different from the previous one, okay। mensuration में काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक टॉय वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ रियली फेमस क्वेश्चन, जो ऑल्टरनेट ईयर्स में या कभी ना कभी तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही जाता है, तो प्लीज़ टॉय वाले क्वेश्चन को बराबर कीजिए। एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर होगा इसके अंदर, वर्ड प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए बोला हूँ, ज़रूर कीजिएगा। So in case if you have already practiced the entire chapter, so please do not go for the entire chapter to practice again because इसके calculations बहुत बड़े हैं and it will require a lot of time there, okay। So आप उसी questions को practice कीजिए जिसमें आपको doubts है। अब दूसरी बात, जिन्होंने chapter practice ही नहीं किया, they are scared of the calculation part and every stuff, so what you can do there, so on this part that you have not practiced, the third point on this slide, that you have not practiced this chapter at all, so you can go for 1 and 2 marks question from Navneet practice paper book or any other standard book, जहाँ से आप इसके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के प्रॉपरली करें। देखिए 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फॉर मेंसुरेशन आपको पेपर में फॉर्मूला बेस्ड सम ही होगा, सो इफ़ यू नो दी फॉर्मूला, आपको ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आपको आने चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। सो फॉर 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, फॉर वीक स्टूडेंट डू नॉट स्किप द स्टार्टिंग क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन आप शायद छोड़ दें जहाँ कैलकुलेशन है और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, वहाँ पर अगर आप वीक है तो छोड़े। फॉर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन आर नथिंग, वो आप इजीली कर लेंगे उसको, ठीक है। एंड नाउ द वन रिमेनिंग पार्ट इज देयर, व्हाट अबाउट थियरम्स। काफ़ी कुछ बच्चे पूछते हैं कि थियरम्स का क्या होगा। लुक, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि पूरा थियरम पूछा जाएगा या नहीं, एज पर द क्वेश्चन पेपर एंड एज पर द ट्रेंड जो अब तक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, वेदर इट इज़ ई बाल भारती और नवनीत और आइडियल टेस्ट पेपर और मे अदर एनी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। आई पर्सनली रिफर 4 to 5 practice paper books, okay। So from all this I can conclude that theorem will be of a new type where you have to write the statement, there will, or maybe a statement will be given to you or you have to just prove some part of that theorem, that's it। आपको पूरा थ्योरम नहीं आएगा, ये एक नया पार्ट है। स्टिल आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कि थ्योरम किस मायनों में पूछा जाएगा। स्टिल इफ़ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट एंड एमिंग टू गेट 90 अबाउ 90%, प्लीज़ डो नॉट स्किप थ्योरम, इज दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, मे बी क्वेश्चन में सरप्राइजिंगली पूछा जा सकता है। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग रिगार्डिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन। काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लोग, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी जो होगा वो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होगा। एंड मेरे ख्याल से जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आना चाहिए वो एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसको आप 1 या 2 स्टेप आपके लॉजिकली सही जाए, देन यू कैन डू द एंटायर कैलकुलेशन। बिकॉज द फर्स्ट ईयर है, बोर्ड्स वाले भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, okay, so they will not give you very difficult question and challenging questions are being asked in CBSE 10 standard as well, तो वहाँ पर challenging questions है because I teach CBSE 10 standard as well, तो वहाँ पर challenging questions होते हैं and these students don't have any problem, sorry, these students don't have any problem attempting the challenging question because उनको बचपन से आदत है, लाइक 7th 8th 9th 10th ये सारी स्टैंडर्ड में उनको चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। सो डोंट पैनिक इफ यू गेट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में कोई एक इजी क्वेश्चन ज़रूर होगा फॉर यू, ओके। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मार्क आउट ऑल दी सम्स। अगेन माय नेम इज़ नासिर शेख।
And if you want to join our WhatsApp group, I have given my number in the first slide. You may join our WhatsApp group, okay, if you want all the updates there. Thank you for listening us, okay. Jazakallah khair.